साथियों नमस्कार। साथियों कल अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद पूरी दुनिया उसी घटना की चर्चा कर रही है और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में जब किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति को चार बातें सुना दी हो और फिर वो बातें बहस में तब्दील हो गई हो और इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई हो कि उस राष्ट्रपति को वहां से जाना पड़ा हो और सीधे अपने देश में लैंड करना पड़ा हो। ऐसा पहली बार हुआ है। ये दूसरे देश के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ये व्हाइट हाउस गए हुए थे। अमेरिका ने एक इनके साथ डील का प्रस्ताव रखा था कि हम आपको ये डील देना चाहते हैं, बताइए आप लेना चाहते हैं या नहीं। एक्चुअल में आपको याद होगा सऊदी अरब में एक मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले जहां पर अमेरिका के ऑफिशियल्स, रशिया के ऑफिशियल्स, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स बैठ करके शांति वार्ता करते हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोका जाए। उसमें अमेरिका एक ड्राफ्ट तैयार करता है और ये ड्राफ्ट यूक्रेन को स्वीकारना होता है। इस ड्राफ्ट में लिखा होता है कि अमेरिका यूक्रेन में हमेशा शांति बनाए रखेगा, उसको सिक्योरिटी देता रहेगा जैसे दे रहा है। बदले में यूक्रेन को युद्ध विराम करना होगा, इस पर रशिया भी तैयार है। और अमेरिका को यूक्रेन आने वाले समय में अपने मिनरल रिसोर्सेज का 50% प्रॉफिट देगा। मिनरल रिसोर्सेज कौन से साहब? जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या और जरूरी मिनरल रिसोर्सेज हैं जो भी अमेरिका को लगते हैं वो। इस डील में देखा जाए तो यूक्रेन के लिए तो कुछ है ही नहीं है। यूक्रेन का 20% एरिया रशिया ले चुका है, उसमें भी लगभग जितने भी मेटल मिनरल्स हैं उसका 40% रिसोर्सेज वाला क्षेत्र रशिया के पास चला गया है। इधर जो बचा कुचा है उसका 50% मिनरल रिसोर्सेज अमेरिका लेने को बोल रहा है। तो यूक्रेन के पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो यूक्रेन क्यों हाँ करे? इस बात को लेकर के जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचा। बात चल रही थी नॉर्मल, एक तरफ ट्रंप बैठे थे, एक तरफ जेलेंस्की बैठा था और एक तरफ जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस बैठे हुए थे। तो नॉर्मल बातें चल रही थी। जेलेंस्की ने एक बात छेड़ी। During the war, everybody has problems, even you. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I was You don't have the saying- cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the What- United what States are of you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, no. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, but president. they had to use our military. What about we are If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times that there, thank you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look,
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a But ceasefire. I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. ये देखो अमेरिका, आपको क्या पता हम पर क्या बीत रही है। आप तो दोनों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, आप पर तो कोई खतरा है नहीं, लेकिन हमसे पूछिए हम पर क्या बीत रही है। आने वाले समय में जब आप पर ऐसा कभी होगा तब आपको पता चलेगा कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा हम पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तुम चिंता मत करो, और तुम उस स्थिति में नहीं हो कि तुम हमें बताओ कि हमको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तुम पहले अपनी स्थिति सुधारो, तुम किसी कंडीशन में नहीं हो कि तुम हमको डिक्टेट करो। इधर फिर यो बोल पड़ा, नहीं नहीं आपको पता नहीं है कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं, आप तो जो है बोल देते हैं कुछ भी। इधर ट्रंप ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, हमारी वजह से यूक्रेन में लाखों लोग मर रहे हैं, यूक्रेन में लगातार जो है लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, वहाँ पे अशांति फैली हुई है, हम शांति लाना चाहते हैं, हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, और तुम हमें बता रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। इधर ज़ेलेंस्की कहता है कि लेकिन आप जिस तरह से शांति लाना चाहते हैं उसमें यूक्रेन का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, इसमें तो अमेरिका का ही फायदा है। इसमें ट्रंप कहता है तुमको क्या लगता है कि मैं अमेरिका के फायदे के लिए कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूं कि भाई शांति बनी रहे और मुझे शांति दूत के रूप में जाना जाए। हाँ ये बात सही है कि अमेरिका के $350 बिलियन वहां पे फूंक गए हैं, तो अमेरिका उसको तो रिकवर करेगा ही करेगा ना, लेकिन उससे पहले मिले जरूरी है कि वहां शांति रहे। फिर इसका कहना था कि आप तो शांति की बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे पुतिन करता है, आप तो सेम पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का। फिर इसने कहा कि भाई देखिए आप जिस तरीके से प्रस्ताव लेकर के आए हैं उसमें रशिया का फायदा है, अमेरिका का फायदा है, आपने हमें ये एश्योर किया था कि आप हमारे साथ हमेशा देंगे, आपके बाइडेन साहब ने किया था। तो इधर ट्रंप ने बोला कि बाइडेन कोई स्मार्ट आदमी नहीं था, उसने जो कह दिया मुझे नहीं पता, ना वो स्मार्ट था, ना उसको सलाह देने वाला ओबामा स्मार्ट था, ना पहले बिल क्लिंटन स्मार्ट था, ये सब लोग ऐसे ही लोग हैं, ये सब लोग डेमोक्रेट्स के लोग थे, यानी कि विपक्षी दल के। जो आपके ट्रंप हैं ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ये बाकी सब विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको पसंद नहीं आएंगे। फिर ज़ेलेंस्की ने अपनी बातें कुछ कही तो ट्रंप इधर और ज्यादा बोल पड़े, फिर तो ट्रंप ने बोलने ही नहीं दिया ज़ेलेंस्की को, पता ही नहीं चल रहा था ज़ेलेंस्की क्या कहना चाह रहे हैं। एकदम ट्रंप काटे जा रहे थे। ट्रंप बोलते हैं देखो ऐसा है, तुम जैसे व्यक्ति की वजह से युद्ध आज भी चल रहा है और हमने तुम्हारी सहायता करी थी इसलिए तुम आज भी बचे हुए हो, अगर अमेरिका तुम्हारे साथ ना होता तो ये युद्ध 2 हफ्ते में खत्म हो जाता। तो ज़ेलेंस्की कहता है 2 हफ्ते में कहा, कोई तो 3 दिन में खत्म हो जाता, पुतिन तो 3 दिन की कह रहा था। फिर ये कहते हैं कि हाँ 3 दिन में भी हो जाता, बट तुम ध्यान रखना इस बात को। जब ये और ज़्यादा मामला गर्मा गया तब जो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस वो बीच में आते हैं, वो कहते हैं देखो भाई ज़ेलेंस्की ऐसा है, आप लगातार इस हाउस के डेकोरम को गिरा रहे हैं, इस हाउस की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसी बातें मीडिया में बोल रहे हैं जो मीडिया में नहीं बोलनी चाहिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं आप ठीक नहीं है, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए। तो आप हमारे प्रति एक बार भी थैंकफुल हुए आप? उसने कहा हाँ हुए हैं, एक बार भी नहीं हुए आप। और जब चुनाव चल रहे थे अमेरिका में तो आप विपक्षी दल का कैंपेन कर रहे थे, हम जानते नहीं है क्या आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, आप किस तरह से जो चीजों को चला रहे हैं। इस पर ज़ेलेंस्की कहता है तो जो कुछ भी है जैसे भी है इसमें ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप बोल पड़ते हैं अरे ऊंची आवाज में कहाँ बात कर रहे हैं, ये कहाँ ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं इन्होंने, जैसे हम लोग घर में नहीं लड़ते हैं, एकदम 2-3 लोग आपस में इस तरह से लड़ाई हो रही थी यहाँ पे। मुझे लग रहा था कहीं थप्पड़ पर ना मार दे, और हाथ वाथ लगा के भी ट्रंप जो है बात कर रहे थे। ठीक है ना, ऐसा है तुम समझ लो, इस बात को मान लो, वरना बुरी तरह से पछताओगे। तुम एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो जिसकी वजह से यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध में जा सकता है, तुम लोगों की जिंदगियों से जुआ खेलना बंद कर दो। फिर इसने कहा कि नहीं देखिए आप समझिए, हम डील हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ये होना चाहिए। फिर ट्रंप ने बोला कि तुम्हारे पास कोई कार्ड्स नहीं है, तुम इस स्थिति में नहीं हो कि तुम अपनी कोई बात कह पाओ, सीधी बात है, तुमको तो बस हम जो कह रहे हैं वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका है तो तुम बचे हुए हो, नहीं है तो तुम्हारा कोई नहीं बचा पाएगा, लिख करके ले लो इस बात को, तुम्हारे अब अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। देखिए इन शॉर्ट ये वाली बात है कि अमेरिका जो दादा है दुनिया का, कल बता रहा था कि हम दुनिया के दादा हैं। ये बात कहना कि शायद तुम्हारी औकात नहीं है, देखो देसी भाषा में बोलूँ ना, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ कहने की, ठीक है ना, एक झापड़ बैठ जाओगे, जैसे जो कहना है मान लो और जो बोला है चुपचाप स्वीकार कर लो। इट इज लाइक दैट, जैसे हम अपने देसी माहौल में करते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई, और आप देखना वीडियो में जिस तरह से ये माहौल बनता जा रहा था, उसके बाद तो कोई बातचीत का वो बनता ही नहीं है सीन। फिर मीडिया जितनी भी थी उसको बाहर कर दिया गया कि आप लोग यहाँ से जाइए क्योंकि चीजें बहुत वो हो गई हैं। और फिर अमेरिका के ऑफिशियल्स ने यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स मौजूद थे उनसे कहा कि भाई देखो यूक्रेनियों, तुम अब यहाँ से धीरे से निकल लो। फोन करके यूक्रेन के राष्ट्रपति की गाड़ी मंगवा दी गई, यूक्रेन का राष्ट्रपति सीधे वहां से निकला, गाड़ी में बैठा और सीधे यूक्रेन रवाना हो गया।
कोई उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, कोई उसमें डील की कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बेइज्जती होकर के ऐसे भागा जैसे जो है पता नहीं क्या हुआ है। अब जब ये चला गया तो बाद में ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया। ट्रंप ने बोला कि भाई जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उससे तो जो है अमेरिका को जो है, अमेरिका तो शांति चाहता है, यूक्रेन शांति नहीं चाहता है। अमेरिका तो अभी भी कह रहा है कि अगर यूक्रेन को या यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका वापस आना है तो वो आ सकता है, डील कर सकता है, लेकिन शांति के लिए राजी हो तभी। वो अपनी शर्तें लेकर के आएगा तो नहीं। फिर मीडिया से भी बातचीत करी ट्रंप ने बाद में और मीडिया को बताया कि देखिए जिस तरह से वो आदमी बिहेव कर रहा है वो ठीक नहीं है, इस तरह से कोई बातचीत नहीं करता है और बट हाँ, अगर वो चाहे तो डील कर सकता है, लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचने के बाद में समझ गया कि हम अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि साहब देखिए इस युद्ध में अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ नहीं हुआ तो यूक्रेन पूरा का पूरा चला जाएगा रशिया के पास, और मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही ना हो जाए। यूक्रेन अगर ये सोचे कि यूरोप उसके साथ खड़ा है तो अकेला यूरोप कुछ नहीं कर सकता। यूरोप में भी दो फाड़ हो गई हैं, अकेला यूरोप कुछ नहीं कर सकता। रशिया जैसी महाशक्ति से बचने के लिए यूरोप कुछ नहीं कर सकता अकेला। यूक्रेन को अल्टीमेटली अमेरिका की सहायता चाहिए, इसलिए इसलिए जेलेंस्की ने माफी भी मांगी। जेलेंस्की से जब पूछा मीडिया वालों ने कि भाई देखिए आप जिस तरह से बोल करके आए हैं, शायद वो लोग ऑफेंड हो गए, तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे? तो उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जिस तरह से बोला, जिस तरह से बातें हुई, लेकिन मैं चाहूँगा कि यूक्रेन में कुछ ना कुछ ऐसा हो कि यूक्रेन का भी भला हो। इन शॉर्ट देखा जाए तो ये जेलेंस्की जो है वो अपने यूक्रेन के नागरिकों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए इस कदर डेडिकेटेड हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति से जाके भिड़ गया। भाई इस वीडियोस को, इन सारी चीजों को यूक्रेन के नागरिक भी तो देख रहे होंगे, तब ना पता चलेगा कि हमारा राष्ट्रपति अपनी जान की बाजी लगा करके व्हाइट हाउस में बैठ करके यूएस के राष्ट्रपति से लड़ रहा है, तो उनको लगेगा ये है हमारा राष्ट्रपति। इसलिए कर रहा था जेलेंस्की। जेलेंस्की अपनी राजनीति कर रहा है अपने हिसाब से, यूएसए अपनी राजनीति कर रहा है अपने हिसाब से, रशिया अपनी राजनीति कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन जेलेंस्की जिन लोगों से राजनीति कर रहा है उनसे बच नहीं पाएगा। ये लोग इसे ऐसा फंसाएंगे कि ना तो ये सत्ता में रहेगा और ना किसी मतलब का रहेगा। मुझे लग रहा है जब इसकी सत्ता चली जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रेगोजिन की तरह किसी दिन इसका भी प्लेन जो है। तो ये सारी चीजें हैं साहब, अब आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट आते हैं। कोई अगर अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।